لیے طے شدہ تھا اور اس کے بعد یہ تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے کہ 197 ووٹوں والا امیدوار وزیر اعلیٰ نہیں رہتا اور آج جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے جب 10 ووٹوں کی باری آتی ہے تو ایک طرف 25 ووٹ 197 والے کے مائنس کر دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف 10 ووٹوں کا اضافہ 185 ووٹوں والے کا کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک کھلا تضاد ہے اور یہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے اس کے تحت ہی اس کی اگلی کڑی ہے کہ اسپیکر کے انتخاب کے دوران بیلٹ پیپر پر بھی اور کاؤنٹر فائل پر بھی سیریل نمبر درج تھے. اب یہ جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے جس کے کرتا دھرتا چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جنہوں نے لگ بھگ 700 افراد کو غیر قانونی طور پہ بھرتی کیا ہے، یہ ان کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے تحت جب کوئی بھی رکن اسمبلی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا اور کاؤنٹر فائل پر دستخط کیے تو اس کاؤنٹر فائل پر جو سیریل نمبر درج تھا بیلٹ پیپر پر بھی وہی سیریل نمبر درج تھا. تو یہ الیکشن شفاف نہیں ہوا، یہ الیکشن آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس الیکشن کے دوران. اور ہماری لاہور ہائی کورٹ سے جو استدعا ہے وہ بالکل پلین اینڈ سمپل ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ری پولنگ کا اور نئے انتخاب کے آرڈر جاری کیے جائیں. اب سپریم کورٹ کے ماضی کے جو فیصلے ہیں اس میں یہ بات درج ہے کہ خفیہ رائے شماری آئین کے تحت لازم ہے. کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے تحت خفیہ رائے شماری جو ہے اس کی کچھ ایکسیپشنز لا کے اندر دی ہوئی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص اس کی بینائی نہیں ہے، کوئی ویژولی امپیئرڈ شخص ہے، اس کو سہولت دی جا سکتی ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ ووٹ کاسٹ کر سکے. مگر اس طرح کے الیکشن میں جب ایسی کوئی صورت نہیں ہے ایکسیپشن والی اور شفاف الیکشن کرانا مقصود ہے تو یہ بیلٹ پیپر پہ اور کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر درج کر کے کھلی دھاندلی کی گئی ہے. اور یہ الیکشن جو ہے یہ غیر آئینی الیکشن ہوا ہے، غیر قانونی الیکشن ہوا ہے اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے. اور دیکھیے یہ جو پنجاب کے اندر ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت 25 ووٹ مائنس کر کے ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا اور ایک وزیر اعلیٰ کو 10 ووٹ دے کے وزیر اعلیٰ انسٹال کیا گیا، یہ بہت بڑا این آر او ہے اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ اتنی سی تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، اتنی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے. تو اس کی منی لانڈرنگ بھی ہو اور وہ اعتراف بھی کرے تو وہ اتنی سی منی لانڈرنگ ہے. وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی بھی مانگے فائلیں سائن کرنے کے عوض تو وہ بھی جائز ہے. وہ جب تک اپنی فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دیتا، اور وہ جو فورن فنڈنگ ہے 7 سال سے زیر التوا ہے. اور ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو اپوائنٹمنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ کی اور چیف الیکشن کمشنر کے تجویز کنندہ تحریک انصاف کے پرویز خٹک تھے. آج یہ اسمبلیوں میں قراردادیں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈسکا کا فیصلہ ہضم نہیں ہوا. یہ میچ فکس کرنا چاہتے تھے جیسے ان کو میچ فکس کرنے کی عادت ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ان کے ساتھ میچ فکس کرے. اب جب وہ قانون اور انصاف کے تحت چل رہے ہیں تو یہ ہر دوسرے دن ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی یا بیان آتا ہے یا قرارداد آتی ہے. تو کہاں پہ آپ کی منی لانڈرنگ ایک طرف، آپ کی 5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں ایک طرف، گوگی اور اس کے خاوند کی پنجاب کی کرپشن ایک طرف، مگر فورن فنڈنگ کا آپ کو حساب دینا ہوگا
कोई बैन अल-अक़वामी साजिश के बयानी के पीछे आप नहीं छुप सकेंगे। कोई मजहबी टच दे के कि मजहबी टच दे दो इसको, गद्दारी का फतवा लगा दो इस पे, कोई गद्दारी, कोई मजहबी टच, कोई बैन अल-अक़वामी साजिश का बयानिया फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं है। अरबों रुपया बैरी सी स्नैप्स कौन है ये आपको बताना होगा कि वो अमेरिका का एक यहूदी शहरी है जिससे आपने अपनी पार्टी के लिए फंडिंग ली। इंडिया इजराइल से फंडिंग क्यों आपको आई? और हमें कहते थे रसीदें निकालो, तो फितना खान नियाजी अब आपने रसीदें देनी हैं और हम ये मुतालबा रखते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला फिलफौर सुनाया जाए, क्योंकि जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, पहले स्टे ऑर्डर लिए गए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, फिर इस्तदा की गई कि इसको सीगा राज में रखा जाए। ये 7-8 साल का मामला अब मंतकी अंजाम को पहुंचा है और वो अबराज ग्रुप, आरिफ नकवी, वूटॉन क्रिकेट क्लब, जिसके तहत आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने कोई मनी ट्रेल नहीं दी। जो मुलाजमों के नाम पर अकाउंट हैं आपके बावर्चियों के, नायब कास्तों के, वो इसके अलावा हैं। तो इमरान नियाजी साहब, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। आप करें तो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करें। हम पिछले 4 साल से अदालतों में खड़े हैं, एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। कहां है शहजाद अकबर? बुलाएं टीवी पर उसको, मनाजरा करने को तैयार हैं कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इकामे पे निकाला और शहबाज शरीफ साहब पिछले 4.5 साल से अदालत के रूबरू खड़े हैं, एक पाई की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। हायर कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं, मगर अब आपकी जवाबदेही की बारी है। जो आपने बैरूने मुल्क से बैरूनी साजिश के तहत पैसे लिए हैं, ना उसकी मनी ट्रेल है, ना उसके इस्तेमाल के हवाले से आपके पास जवाब है। ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी, इसको तो बैन होना चाहिए, इस पे तो पाबंदी लगनी चाहिए कि ममनुआ फंडिंग ले और गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग करे और उसका जवाब भी ना दे। तो ये आरिफ नकवी के साथ जो आपके ताने बाने मिले हैं, वो तो बाहर के मुल्क में भी सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड फेलन है, तो आप यहां पे बैठ के इसका दिफा करते हैं। फितना खान नियाजी साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर क्या करें, ना आपको शर्म आती है ना आपको हया आती है। अब इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग, 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां, फरागोगी के अरबों रुपए, इनका जवाब चले जब होगा सो होगा, मगर फॉरेन फंडिंग के अंदर आप जो मर्जी कर लें, आपको जवाब देना होगा कि जो अरबों रुपया ममनुआ फंडिंग आपने ली है, इसका जवाब आपको देना होगा। और मेरी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि पाकिस्तान की तारीख में वाहिद केस मियां नवाज शरीफ का है जो रोजाना की बुनियादों पर चला, जो ट्रायल डे टू डे बेसिस पर हुआ। तो ये एक तरफ वो केस है और एक तरफ ये केस है जो 7 साल से ऊपर हो गए हैं। तो फितना खान, जवाबदेही भी जरूरी है, और इतनी नहीं, वो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसका जवाब देना होगा। अपना पैमाना तो ठीक कर लो, माना कि इंसाफ का तराजू, क्योंकि आपका पलड़ा झुक जाता है तो उसने आपका जहन का तवाजन भी थोड़ा सा मुतासर किया है, क्योंकि चौधरी शुजात का लेटर वो इधर आ गया और आपका लेटर इधर आ गया, तो आपकी आदत खराब हो चुकी हैं। मगर अपना पैमाना ठीक करो, ये इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसकी जवाबदेही भी जरूरी है और उसकी सजा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से आपको भुगतना होगी। मलिक अहमद खान साहब मजीद इस पे बात करें। मलिक साहब पहले बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 3 सवाल बड़े जरूरी हैं। पहला, आइन के अंदर ये दर्ज है कि जो चीजें जिस तरीके कार से होनी है, थिंग्स ऑट टू बी डन इन अ मैनर, जो उसके अंदर लिखी गई है, अगर उससे हट के होंगी तो फिर वो गलत होंगी, कालादम होंगी। तो ये जो स्पीकर का इलेक्शन है, ये आइन का
मंशा ये है आर्टिकल 226 की कि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे, और अगर वो सीक्रेसी किसी तरह से ब्रीच होती है तो ये ना सिर्फ आर्टिकल 189, 190 की खिलाफ वर्जी है, ये आर्टिकल 226 जो कि सीक्रेट बैलेट डिमांड करते हैं, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। सो इस वक्त जो मसला इस वक्त दरपेश है, जिस वजह से हम अदालत के सामने हैं, वो ये है कि ये सीक्रेट बैलेट, इसकी सीक्रेसी को ब्रीच करना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है, और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इनको कालअदम करार दिया जाना चाहिए। दूसरा मामला जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने है कि आज तक ये बहस रही है कि ये सीक्रेट बैलेट हो या कैसे हो, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो था, जब सेनेट के इलेक्शंस के मौके पे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला गया तो उसमें ये असूल तय कर दिया गया था कि अगर कल कला किसी मौके पर कोई ऐसी एलिगेशन आती है कि कोई ऐसे वोट्स जिनके अंदर कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं और सीक्रेसी ब्रीच हो, यानी सीक्रेसी को सैक्रोसेंट जाना गया, उसको मुकद्दम जाना गया, और उसको पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और फिर ये कहा गया इस सवाल को एड्रेस करते हुए कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि कानून और आइन की नज़र में दुरुस्त नहीं है, जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, तो उनको जांचने के लिए कोई पैमाना जो है वो तरतीब दिया जा सकता है। तो इस एतबार से सुप्रीम कोर्ट पहले वाज़े तौर पे कह चुकी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था सेनेट इलेक्शंस के टाइम पे, तब ये असूल तय हो चुका। तो इट्स अ वेरी सिंपल ABC केस, ये इलेक्शंस गलत हुए हैं, ये कालअदम इंशाल्लाह होंगे, और इसी एक नुक्ते पर कि इसमें सीक्रेसी भी वायलेट हुई है एंड मेनी अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब की धज्जियां बिखेरी हुई हैं। अब इमरान खान साहब के नज़दीक मामला क्या है कि वो बुनियादी तौर पे इस वक्त बेनिफिशरी हैं उस एक पोजीशन के जो एक गलत तशरीह की वजह से होती है, और गलत तशरीह बाज़-औक़ात हो जाती है, थिंग्स डन इन गुड इंटेंशन ऑल्सो कुड बी पुट रॉन्ग, लेकिन ये कभी गलत तशरीह दो मौके पर एक ही शख्स को बेनिफिट दें, ये नहीं हो सकता। अब या तो वो भी जो तशरीह थी पहली, उसका भी फायदा मिले तो तहरीक इंसाफ के लोगों को मिले, जब 25 वोट डाल दिए जाएं, फिर उन डले हुए वोटों को कैंसिल करना दुनिया की किसी जुरिस्डिक्शन में, ना सिर्फ कि पाकिस्तान में किसी आइन और कानून के मुताबिक, या किसी भी जुरिस्डिक्शन में काउंटेड वोट्स का जो एक बड़ी तारीख है, वोट्स एक अरसा दराज के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ओवर द सेंचुरीज ऑफ बीइंग कास्टेड वोट्स। वेस्ट की आप प्रैक्टिसेस देख लें, आप इंग्लैंड की देख लें, और ममालिक की देख लें, इन सब में जो वोट है उसने एक सफर तय किया है, और वोट की एक इंडिपेंडेंट किसी जगह पर आप उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। वोट की तो एक अपनी एक अहमियत है, और उस अहमियत का ये तकाजा है कि जो आप उसको जिस तरीके से उसने ये उसको हासिल है, प्रोटेक्शन हासिल है, वो रहनी चाहिए। सो नोबडी हैज दिस राइट, नीदर द जजेस हैज दिस राइट, कि वो जजेस ऑनरेबल चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, तो जजेस को काउंट में से मिन्हा कर दें। अगर उसकी वजह से कोई नाइंसाफी ऐसी आती है तो वो दैट इज समथिंग जो कि जरूर देखनी चाहिए उन मुतल्लिका बेंचेस को जिनके अंदर ये मामला ज़ेर गौर थे। ये फिर उसके बाद जब एक प्रैक्टिस आप गलत करते हैं तो फिर कई प्रैक्टिसेस गलत होती चली जाती हैं। अब अगर वही प्रैक्टिस जो आपने इमरान खान साहब के फेवर के लिए हुई उसमें उनको फायदा हुआ, अगर वो खत किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आए उसमें फिर उसकी तशरीह इस तरह से हो कि पहली वाली तशरीह गलत थी और उन दोनों का फायदा किसी एक साहब को मिलता हो, और फिर जो भी प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में इलेक्शंस हुए जिसमें इतनी ब्लेटेंट वायलेशंस हैं कि सीक्रेसी टोटल ब्रीच करके रखती है, तो इन हालात में हमारा ये ख्याल है कि ये जो इलेक्शन है ये कालअदम करार दिया जाएगा। कोर्ट के सामने मामला है, हमने अपने दलाइल रखे हैं, नोटिस हो गए हैं, एक आधे दिन के अंदर ये मामला चलेगा। अब ये जो फॉरेन फंडिंग की बात है जो भी अता कर रहे थे, देखिए ये कल से बहस खोल रहे हैं हमारे दोस्त जो तहरीक इंसाफ में हैं कि प्रोहिबिटेड फंड्स एंड फॉरेन फंड्स, तो ये दीज आर प्रोहिबिटेड फंड्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। ये सिंपल सी बात है, ये कोई लंबी रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप ये प्रोहिबिटेड फंड्स हैं जो आपके फॉरेन सोर्सेज से हैं, अब तो इस्टेब्लिश्ड हो गया कि फॉरेन नेशनल्स थे, उनका आपके पास आना कैसे था। और अब एक और सवाल पैदा हो, मैं शौकत खानम के अदारे की इज्जत करता था क्योंकि वो एक इस्टेब्लिश्ड अदारा था। आपकी इस तरह की सूरत हाल में अब हमें ये हक हासिल है कि हम कहें, यानी आपने जो डोनेशंस इकट्ठी की थी वो शौकत खानम के नाम पर थी और उनका इस्तेमाल जो है वो आपके पॉलिटिकल पर्पसेस पे हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा इंक्वायरी कमीशन एक प्रोब डिमांड करता है जो कि अरबों डॉलर्स पर मुहित है और ये पब्लिक मनी है। बाकी लोगों के जो मामलात हैं
वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आपने कायम किए वो बेसिकली उनके अपने बिजनेसेस के हैं। किसी की कोई बड़ी शुगर इंडस्ट्री है, किसी की और कारोबार हैं और वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस के बैंक्स के भी उनके साथ लोन्स हैं, इंटरेक्शंस हैं। लेकिन ये एक यूनिक केस है कि आप चंदे की मद में पैसे लें, यानी पब्लिक मनी लें वो इस पर्पज के लिए कि आपने उसको सोशल वेलफेयर या मेडिकल पर्पजेस के लिए लेना है और इस्तेमाल उसको आप अपने सियासी मकासद के लिए करें। इससे बड़ी तारीखी बेईमानी मैंने आज तक सुनी नहीं। तो इस पर तो आपको खुद वॉलंटियर करना चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स को खुद लेकर आना चाहिए, रादर कि आप उन लोगों को जो आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे, जो बाद में आपके बिजनेस पार्टनर्स एस्टैब्लिश हुए, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ आप कहते थे कि शौकत खानम इज अकाउंटेड फॉर, शौकत खानम इज नॉट अकाउंटेड फॉर। टाइम एंड अगेन इट हैज बीन प्रूवन कि जो उसके डायरेक्टर्स थे, जिसमें आपकी फैमिली के मेंबर्स थे, आपकी बहन थी, उनके जो एसेट्स बार एक्यूमुलेट हुए, उनके पास इसके अलावा कोई और नॉन पोजीशन नहीं थी। तो वेयर डिड दैट मनी कम फ्रॉम? अब ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये जो आपके फॉरेन फंड्स थे जो कि प्रोहिबिटेड थे और फॉरेन सोर्सेज से आ रहे थे और वो आप उस वक्त इकट्ठे पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे नहीं कर रहे थे। तब आप इकट्ठे, मैंने आपको बेशुमार दफा चंदा दिए, तब मैं उस वक्त स्कूल में था, आप मेरे स्कूल में, मैंने आपको चंदा दिया। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब भी आप चंदा मांगते थे, तब मैंने आपको चंदा दिया। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने लगा, आपके शौकत खानम को, क्योंकि हम समझते थे कि शायद ये एक नोबल कॉज है, लेकिन किसी एक शख्स को अपनी बुनियाद किसी एक नोबल कॉज पे बनाकर वहां पर जाना जहां पर ये पूरी इतनी बड़ी चीटिंग की बेस प्रोवाइड कर दी है, ये जो है ये एक सोशल फैब्रिक को भी बिल्कुल तोड़ के रख दी है। सो मेरा ये कहना है और मानना है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आ गया है तो आपका ये हक बनता है कि आप अपने आप को पेश करें स्क्रूटनी के लिए। आपको खुद सामने आना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरी ख्वाहिश मेरे साथ ही जाएगी। आप जब तक जेल में नहीं डाले जाएंगे कुछ होगा नहीं। देखिए, वो सुना था कि सदका तमाम बलाएं खा जाती है, फितना खान सदका खा गया है तो, और कहता है इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 7 साल में इतनी सी नहीं निकली, वो निकली इतनी है। तो ये जवाब तो देखें, स्क्रूटनी कमेटी भी अपना कर चुकी, डिटेल डिलिब्रेशंस, इलेक्शन कमीशन भी कर चुका, अब इसका फैसला आना चाहिए। जी राम साहब, आपने उस प्रोसेस का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन के उसकी जो वैलिडिटी है उसको टेस्टिफाई नहीं किया। क्या ये प्रॉपर डिसीजन था या आप समझते हैं ये प्रॉपर डिसीजन नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब ये इलेक्शन हो रहा था और निशानदही हुई कि बैलेट पेपर्स के ऊपर सीरियल नंबर दर्ज हैं, तो हमारे जो वुकला मेंबरान हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने 2 एप्लीकेशन जमा कराई। उन एप्लीकेशन में ये दर्ज था कि रीपोल कराया जाए। तो जहां तक रेमेडी की बात है, हम एक फोरम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो रिटर्निंग अफसर का फोरम है। वो दरखास्तें हमने एनेक्स की हैं अपनी रिट पिटिशन के साथ कि हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात रखी थी कि ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट और सैंक्टिटी ऑफ बैलेट वायलेट हुई है, रीपोल करवाया जाए। दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम बक्से उल्टा देते, वो हम करना नहीं चाहते थे। हमने अभी तक कोई गैर आईनी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। हम आज भी कोर्ट के सामने खड़े हैं, दरखास्त लेके खड़े हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस भी दरखास्त यही दी। बड़ा एक कर लें। पिछले 4 माह से इमरान खान के खिलाफ आप तस्वीर प्रस्तुत करते थे और बहुत सारे इल्जाम हैं। अभी तक इमरान खान के खिलाफ केस गलत सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप सच्चे होकर सोशल मीडिया के जरिए वो होकर अपना बयानिया प्रमोट करता है और उसका बुनियादा है वो दिल्ली इलेक्शन के बाद है। आप अपनी सोशल मीडिया पे एज ए जवाब करते हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब को अभी मुकदमा बेल नहीं हुआ था तो प्री अरेस्ट बेल उन्होंने करा ली माशाल्लाह। पेशावर में जाके छुपे रहे और लॉन्ग मार्च का पूरा अरसा सरकारी मिनरल वाटर की बोतलें सामने रख के, सरकारी गेस्ट हाउसेज में रह के उन्होंने वहां पे पनाह ली और वो अरेस्ट के डर से प्री अरेस्ट बेलें कराते फिर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने जो फराह गोगी के खिलाफ केसेस रजिस्टर किए हैं, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वो फरार क्यों हुई और खान साहब की नो कॉन्फिडेंस वोट से एक दिन पहले फरार क्यों हुई, खान साहब उसको वापस लाने में क्यों रिलक्टेंट है, क्यों हेजिटेंट है। देखिए, जिस दिन फराह गोगी और एहसन जमील गुजर वापस आ गए, अरबों रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी खान साहब के नाम निकलनी है और उनको भी पता है खान साहब को कि ये 1 घंटा फराह गोगी और उसका खामन जेल में नहीं गुजार सकते, इसलिए उन्होंने उनको बाहर फरार करवाया है
کیونکہ وہ بہت سارے راز ہیں فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کے پاس جو اربوں روپے لوٹے گئے ہیں اس قوم کے. تو خان صاحب جس دن وہ واپس ان کو لے آئیں, آج بھی لے آئیں اگر سچے ہیں تو. اگر اپنے آپ کو سچا مانتے ہیں تو آج واپس لے آئیں, دیکھ لیتے ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا دیکھیے, سوشل میڈیا کوئی آن آف کا بٹن نہیں ہے کہ ایک دن آن کیا ایک دن آف کر دیا. سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے, ہماری بھی پریزنس ہے, ان کی بھی پریزنس ہے. ایونٹ ٹو ایونٹ جب آپ کو آن گراؤنڈ کامیابی ملتی ہے تو آپ کا سوشل میڈیا لفٹ ہوتا ہے. خدا نخواستہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مورال لو ہوتا ہے. تو یہ ایونٹ ٹو ایونٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے, مگر ہم کسی کی ماں بہن تک نہیں جاتے, ہم کسی صحافی کو لفافہ جرنلسٹ نہیں کہتے, ہم کسی کو گندی اور غلیظ گالیاں نہیں بکتے, ہم بغیر تحقیق کے الزام نہیں لگاتے. یہ ہماری ناکامی ہے, اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یہ غلطی بار بار کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. لاہور میں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن دوبارہ سے کروائے جائیں.